الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے پڑوسیوں یعنی کہ ہمسایوں کے حقوق۔ سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اس نے ہر ایک کے حقوق کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور سامعین، حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق کا قرآن و حدیث میں بار بار ذکر آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم یا نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ گئے کہ جن کو ادا کرنا ہر مرد و عورت کے لیے لازمی اور ضروری قرار پایا۔ بے شک سامعین، خالق کائنات اللہ کریم نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اپنے لفانی کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سورہ نساء میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ وہ قرابت والے ہوں یا خواہ اجنبی، اور ہم مجلس اور مسافروں کے ساتھ جن کے تم مالک ہو چکے ہو، یعنی کہ لونڈی یا غلام یا ملازم، ان سے نیکی کیا کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ اور سامعین، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے متعلق حکم پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ سامعین، پڑوسی کے حقوق کی اختصار کے ساتھ تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیبدار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ سامنے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اور اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اسے تعزیت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے اس کی ہوا کو نہ روکو، اور سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہاں، یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پڑوسی ان کے بچوں کو رنج و ملال اور غربت کا احساس ہوگا۔ سامنے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو جائیں تو اسے عطا کرو۔ فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں کہ جن پر اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اسلام میں پڑوس کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بن جاؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ مجھے اپنے نیک ہونے کا کیسے علم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہے تو تم نیک ہو، اور اگر وہ تمہیں برا کہے تو تم برے ہی ہو۔ سامعین، اسی طرح جن پڑوسیوں کو کچھ تحفے میں دیا جائے ان پر شکریہ قدردانی و قبولیت لازمی ہے۔ کسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اے مومنہ عورتوں، اپنی پڑوسن کی طرف سے کوئی بھی چیز حقیر نہ سمجھو، اگرچہ بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی مدد کو حقیر نہ جانے، خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اور دی گئی چیز کا شکریہ ادا کرے، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اسلام کی تعلیمات ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتی جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں بچے بھوک و پیاس سے بلبلاتے رہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور اس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔
सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जिसका मफ़हूम ये है कि अबू ज़र जब शोरबे वाला सालन बनाओ तो पड़ोसियों को उसमें से देने के लिए कुछ पानी बढ़ा लो। सुभान अल्लाह। और सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि मेरे दो पड़ोसी हैं, उनमें से एक मेरे दरवाजे के सामने रहता है और दूसरा कुछ दूर, कि बाज़ औक़ात मेरे पास मौजूद चीज़ इतनी होती है कि दोनों को देने की गुंजाइश नहीं होती, तो लिहाजा इन दोनों में से किसका हक़ ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जिसका दरवाज़ा तुम्हारे घर के सामने है। सुभान अल्लाह। और हदीस मुबारक में पड़ोसियों की 3 अक़साम बयान की गई है कि सही हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया पड़ोसी 3 तरह के हैं। एक वो पड़ोसी कि जिसके 3 हकूक़ हैं, और दूसरा वो पड़ोसी कि जिसके 2 हक़ हैं, और तीसरा वो पड़ोसी कि जिसका 1 हक़ है। तो सामीन, इन तीनों अक़साम की वजाहत करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, नंबर 1, 3 हक़ वाला पड़ोसी वो है जो पड़ोसी भी हो, मुसलमान भी और रिश्तेदार भी हो। तो उसका 1 हक़ मुसलमान होने का, दूसरा पड़ोसी होने का और तीसरा क़राबतदारी का होगा। और नंबर 2, 2 हक़ वाला पड़ोसी वो है जो पड़ोसी होने के साथ साथ मुस्लिम दीनी भाई भी है, तो उसका 1 हक़ मुसलमान होने का, दूसरा हक़ पड़ोसी होने का होगा। और नंबर 3, मुशरिक पड़ोसी कि जिसका सिर्फ 1 हक़ है, वो है हक़ पड़ोस। तो सामीन, इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि पड़ोसी ख्वाह काफिर ही क्यों ना हो, शरीयत हमें उसके साथ भी हुस्न सलूक की तालीम देती है। सुभान अल्लाह। कि दुख दर्द में उसके काम आना और किसी भी किस्म की इसको तकलीफ पहुँचाने से गुरेज करना चाहिए। कि सामीन, जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मज़कूर है कि एक दिन उनके घर बकरी ज़िबा हुई तो उन्होंने घर वालों से कहा, क्या तुम लोगों ने हमारे यहूदी पड़ोसी के लिए भी हदिया भेजा है? क्या तुमने हमारे यहूदी पड़ोसी के लिए भी हदिया भेजा है? तो घर वालों ने कहा कि वो तो यहूदी है। तो आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फरमाते हुए सुना कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के हकूक़ की मुसलसल ताकीद करते रहे कि मुझे ख्याल होने लगा कि वो उसको वारिस करार दे देंगे। सुभान अल्लाह। और सामने सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। इस हालत में मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फरमाते हुए सुना, लोगों मैं तुम्हें पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी बार शाह फरमाया कि मैं समझने लगा कि आप पड़ोसी को विरासत का हकदार करार दे देंगे। सुभान अल्लाह। और सामीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन दोस्त वो है जो अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन है, और अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन वो है जो अपने हमसायों के लिए बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। तो सामीन, जहाँ पड़ोसियों से हुस्न सलूक तकमील ईमान का ज़रिया है, तो वहीं उन्हें सताना और तकलीफ पहुँचाना और बदसलूकी के ज़रिए उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना देना दुनिया और आखिरत में नुकसान का हकदार बनना है। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू शरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 बार शाह फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। अस्तग़फिरुल्लाह। और सामने दूसरी रिवायत में है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल को इज़ा दी। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे लड़ाई की बेशक उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से लड़ाई की। अस्तग़फिरुल्लाह। और सामीन, बसा औक़ात पड़ोसी से कितना ही अच्छा सलूक क्यों ना किया जाए, वो एहसान मानने की बजाय परेशान ही करते हैं। तो ऐसे में इस्लाम बुरे के साथ बुरा बनने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि सब्र हुस्न तदब्बर के साथ बुरे पड़ोसी के साथ भी हुस्न सलूक की तरगीब शाह फरमाता है और रिज़ा इलाही की नवीद भी सुनाता है। सुभान अल्लाह। सामीन, जैसा कि सही हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल 3 तरह के लोगों से मोहब्बत फरमाता है। उनमें से एक वो है कि जिसका बुरा पड़ोसी उसे तकलीफ़ दे तो उसके तकलीफ़ देने पर सब्र करे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी या मौत के ज़रिए को फ़ायद फरमाए।
सामिन मसनद अहमद की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है कि जिसका पड़ोसी से तकलीफ़ पहुंचाता है, लेकिन वो उसकी तकलीफ़ पर सब्र करता है, हत्ता कि मौत या वहाँ से नकल मकानी उनके दरमियान जुदाई डाल देती है। सामिन सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और क़यामत के दिन पर यकीन रखने वाला है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों की इज़्ज़त करे। सुभान अल्लाह। तो सामिन इन हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत अहमियत और खुसूसियत के साथ हमें हदायत फरमाई है। लेकिन आजकल हम सब इस मामले में शायद सब चीज़ों से ज़्यादा गाफिल हैं कि आमतौर पर अपने घर का कूड़ा कड़ीकत दूसरों के घर के सामने डाल देते हैं और अपने मकान की तामीर और ताज़ीन ऐसे की जाती है कि हमसायों को इससे बेपर्दगी और कमाईगी का एहसास होता है। और वक्त बेवक्त लोगों के घरों में छतों खिड़कियों के सामने आकर ताक झांक करके दूसरों को अजियत में मुब्तला करते हैं। और सामिन इसी तरह अपने घरों में रिकॉर्डिंग शोरगुल ऐसा करते हैं कि हमसाया परेशान होता रहे। बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोस में कोई बीमार है या आराम कर रहा है या इम्तिहान की तैयारी के लिए पढ़ रहा है, मगर हमारा शोरगुल इस अंदाज से जारी है कि दूसरे के आराम में खलल आ रहा है। और सामिन इसी तरह के बहुत से मामलात हदीस मुबारका के खिलाफ नजर आते हैं, मगर हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जिसके शर से उसका पड़ोसी बेखौफ ना हो तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो सामिन इन हदीस मुबारका की रोशनी में हमें अपने इन अमाल की इस्लाह कर लेनी चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।